This is Sandeep Singh, your SST teacher, and this is your chapter 16, the United Nation. Student, in previous video I have already explained about why United Nation have been organized and who are responsible for the organization for United Nation. Okay? In this video we will explain about the main organs of the United Nations and what are the activities of these organs or departments. I have already explained about the General Assembly, Security Council and Secretariat. Now in the sequence of this, the Economic and Social Council, ECOSOC, the full form of the Economic and Social Council is ECOSOC. This organ takes care of economic and social work of United Nations. It is responsible for social and economic work of the United Nations and whole of the world. It is also supervise projects taken up by the various UN agencies. The main activities of the ECOSOC is to supervise the main activities of fulfillment of the people in the various countries, food of all education, culture and poverty and gender issues. The main issues are the gender issues, culture, poverty and education. The Trusteeship Council, this body was set up to help countries that were earlier under colonial rulers. Okay? The Trusteeship Council is founded, made the department of UN because many parts of the countries, many countries have been colonial rule. They are captured by some great powers by the many countries like French, British, Portuguese and so on. It is not functioning at present but will work if required. It helps that countries which are ever forever colonial religion. The International Court of Justice. This is a judicial organ, UN. It is settle legal dispute between the two more nations. It is presides over 15 judges. जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसमें दो देशों के मामले को सुलझाया जाता है और इसमें 15 जजों की नियुक्ति की जाती है. इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. द हेड ऑफिस ऑफ इज लाइज ऑन हेग इन एम्स्टर्डम. स्पेशल एजेंसीज ऑफ UN. These are independent bodies working under ECOSOC. ECOSOC has the many organs like important area work for all health, education, culture and poverty. Some of them, the United Nations International Children Fund, UNICEF. Full form of the UNICEF is United Nations International Children Fund. It works for children of the world. It tries to ensure that children get adequate nutrition, education, health, protection and clean water. It is responsible for to provide adequate nutrition, education, health,
protection and clean waters. Many projects are held by the countries by the help of UNICEF for the children's. Okay, the Food and Agriculture Organization. The Food and Agriculture Organization FAO. This agency tries to ensure that every person in the world has a food to eat. Many countries have not produced many types of crops, so they are used to face starvation. So FAO try to provide the food for all in the world. It helps farmers grow more foods by providing them with better seeds, fertilizers, irrigation facilities. It is also to help the farmers to grow the more crops with the more facilities. It also supplies food to people affected area, famine, natural disaster and war. Okay, the World Health Organization, it is the important organization of the UN. When the war is going on, the WHO try to relief for that countries and that peoples. This body work toward eradication disease like malaria, tuberculosis, HIV, Ebola and so on. It is responsible for epidemic to control the epidemics in the world like corona, HIV, tuberculosis, Ebola, so on. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO. यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन. दिस एजेंसी अंडरटेक लिटरेसी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम. इसके अंतर्गत यूनेस्को टीचर्स को, अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है. साथ ही साथ इट आल्सो वर्क प्रोटेक्ट टू कल्चर एंड नेशनल हेरिटेज इट मेंबर कंट्रीज. साथ ही साथ यूनेस्को के अंतर्गत कुछ प्राचीन चीज़ें, दुर्लभ चीज़ें जो पाई जाती हैं उसको संरक्षित करने का ये प्रयास करता है. ओके, इंटरनेशनल लेबर्स, श्रम के लिए भी कानून बनाने का प्रावधान जो है इंटरनेशनल लेबर्स ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO करता है. इट वर्क इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन, यानी श्रम के, श्रमिकों के सुधार के लिए, उनके कंडीशन को देखने, मतलब सुधारने के लिए ये जो है स्टैंडर्ड वर्किंग अराउंड द वर्ल्ड. अचीवमेंट्स एंड फेल्योर ऑफ द UN. व्हाट आर द अचीवमेंट्स एंड फेल्योर, क्या क्या उसकी उपलब्धियां रही हैं और क्या क्या उसके मतलब कुछ नाकामियां भी रही हैं UN के, इसके बारे में देखेंगे. इन इट्स ऑल मोस्ट 70 years एग्जिस्टेंस द UN हैज सेम अचीवमेंट्स, सम अचीवमेंट्स एंड सम फेल्योर्स. यानी 70 सालों के अपने अस्तित्व में उसके कुछ उसने उपलब्धियां प्राप्त की है, कुछ उन्होंने नाकामियां भी उनकी रही है. द UNO हैज मैनेज safeguard the world from Third World War. यूनाइटेड नेशन के बनने की वजह से विश्व में कई बार बहुत बड़े पैमाने पर युद्ध की आशंका बनी रही है, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने इस आशंका को बिल्कुल ही समाप्त किया. द UN हैज़ बीन एबल टू फ्री मॉडर्न वर्ल्ड फ्रॉम कॉलोनिज्म. UNO यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा ही विश्व के अनेक देशों को कॉलोनाइजेशन यानी उपनिवेशवाद से यानी किसी दूसरे देश पर कब्जा करने की अनुमति नहीं देता. इससे बाकी देश जो है अपने अस्तित्व के लिए अस्तित्व में हैं और सह अस्तित्व में रहते हैं. द UN सेंड पीस कीपिंग फोर्स टू प्लेस वेयर वाज जस्ट एंडेड इंश्योर पीस मेंटेन. यूनाइटेड नेशन कुछ शांति रक्षकों यानी शांति सिपाहियों को भेजता है जहां पर
अगर कोई मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाता है तो वहाँ पर यूनाइटेड नेशन अपने सैनिकों को भेजता है और वहाँ पर मूवमेंट करता है। द मूवमेंट अगेंस्ट apartheid also started by the UN. The UN has fought against illiteracy. जो इसकी सबसे बड़ी समस्या है कि ये निरक्षरता यानी इलिटरेसी से एंड हंगर भूखमरी और डिजीज बीमारियों से एंड क्लाइमेट चेंज पर्यावरण के बदलाव से फेस भी करता है। However, it failed to stop the spread nuclear weapons across the global. हालांकि यूएन ने विश्व में युद्धों को रोकने में तो सफलता पाई, लेकिन विश्व में जो न्यूक्लियर वार परमाणुविक हथियार हैं उसको बनाने में अक्षम रहा है। इसकी ये सबसे बड़ी नाकामी रही है। इट हैज़ फेल्ड टू मेक नंबर कंट्री रीच ऑन एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। साथ ही साथ बहुत सारे देशों ने क्लाइमेट चेंज पर जो समझौता किया था उसको एक साथ लाने में असमर्थ रहे एंड स्टेप टू टेकन प्रिवेंट इट। इट कुड नॉट स्टॉप द इराक अमेरिकन वार। यूएन के रहते भी अमेरिका और इराक युद्ध को रोक पाने में असमर्थ रहा यूनाइटेड नेशन। इंडिया रिसीव कंटिन्यू हेल्प फ्रॉम यूएन थ्रू इट्स स्पेशल एजेंसीज। भारत जो है समय समय पर यूएन के द्वारा उसकी सहयोग संगठन के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं भी प्राप्त करते रहे हैं। जैसे कि भारत में जो शिक्षा के लिए बहुत सारे योजनाएं चलती हैं, भारत में जो गरीबों के लिए जो योजनाएं होती हैं, घर और आवास और पेयजल के लिए, ये सारी चीज़ें यूएन से मिलती रही हैं। कंट्रीब्यूशन मेड बाय इंडिया टू यूएन। भारत में यूएन का योगदान क्या क्या रहा है इसके बारे में हम देखेंगे। इंडिया टेक पार्ट इन ऑल प्रोजेक्ट ऑफ स्पेशल एजेंसीज ऑफ यूएन। जो भी एजेंसीज यानी जो भी सहयोगी संगठन यूएन का रहा है उसने सभी प्रोजेक्ट्स भारत में लाने का प्रयास किया है। इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूट टू लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स टू यूएन पीस कीपिंग मिशन। साथ ही भारत ने अपने सिपाहियों को शांति रक्षकों में भर्ती करने के योगदान को भी प्रदान किया है। बहुत सारे सिपाही जो है, सैनिक जो है, यूएन के पीस कीपिंग मिशन में भी जाते रहे हैं। आवर पीस कीपिंग ट्रूप्स हैड वर्क इन इजिप्ट, श्रीलंका, हैती एंड अदर प्लेसेस। ये जो पीस कीपिंग ट्रूप्स हैं ये इजिप्ट यानी मिस्र, श्रीलंका, हैती और दूसरे जगहों पर कार्यरत हैं और वहाँ पर अच्छे से कार्य कर रहे हैं। इंडिया हैज़ बीन मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 7 टर्म्स ईयर। भारत जो है सिक्योरिटी काउंसिल का 7 बार 2 साल के लिए सदस्य भी बन चुका है। इंडिया आल्सो कंट्रीब्यूट मनी टू यूनाइटेड नेशन फंड। भारत समय समय पर यूनाइटेड नेशन को उसके फंड में भी कंट्रीब्यूट करता रहता है। इस वीडियो में हमने देखा आफ्टर द 2 वर्ल्ड वार वर्ल्ड लीडर्स फ्रॉम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएन ब्रिंग पीस सिक्योरिटी एंड टू वर्ल्ड। यानी कि जो वो 2 वर्ल्ड वार के बाद पूरे विश्व के नेताओं ने यूनाइटेड नेशन संगठन का प्रस्ताव दिया जो पूरे विश्व में शांति ला सके। एम्स ऑफ यूएन इंक्लूड स्टॉपिंग वॉर, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन राइट्स एंड कंट्रोलिंग पॉवर्टी एंड डिजीज। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन का एक और कार्य रहा कि पूरे विश्व में युद्ध को रोकना, साथ ही साथ पर्यावरण की सुरक्षा, मानवीय अधिकारों की सुरक्षा और गरीबी और बीमारियों से भी इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। द 6 ऑर्गन्स ऑफ यूएन आर जनरल असेंबली, द सेक्रेटरीट, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल। जो यूनाइटेड नेशन के जो 6 पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं? जनरल असेंबली, सेक्रेटरीट,
सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, एंड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और ट्रस्टीशिप काउंसिल है। द सेक्रेटरी जनरल इज द हाईएस्ट ऑफिस इन यूएन। जो सेक्रेटरी जनरल जो इसका मुख्य अधिकारी होता है, इसका हाईएस्ट ऑफिस यूएन में होता है। जैसा कि हमने पहले बताया कि यूएन एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान के यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।